flickers when you unlock the smartphone. The in-display fingerprint scanner doesn't respond sometimes, and you cannot use this device with Android Auto. These are some of the complaints that I'm getting to hear from OnePlus 11R users, of course the ones who own the device. Well, I am also using this device for the past few months, and I can surely tell you its flaws as well as its strengths. But before I do that, allow me to introduce myself. You're already watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and it is my full OnePlus 11R long-term video. Let's get started. Here is a quick revision of the OnePlus 11R spec sheet before we move on. So many a times I shoot at the outdoor locations, and the first thing I want to mention about OnePlus 11R is its very bright display. Other than that, whenever you are binge watching on this smartphone, it actually offers great color reproduction as well as contrast. The blacks look deeper without any color bleeding as well. OTT पर अगर कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें एक खासियत और है कि इस स्मार्टफोन के साथ आपको मिलता है Widevine L1 सर्टिफिकेशन का सपोर्ट, which means you can stream in high resolution on any of the OTT platforms. What further adds to the viewing experience while you're using OnePlus 11R? Is its sharper resolution as well as the support of 120Hz refresh rate, which actually gives you smoother animations as well. So this smartphone runs on Oxygen OS based on Android 13. अब मुझे इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है. Oxygen OS is very easy to use. Even if you are a first time user, तो आपको OnePlus फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. काफ़ी हद तक ये स्टॉक एंड्रॉयड को रखने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अपने कस्टमाइजेशंस डालता है, which is why this phone also offers a lot of customizations in a good way. So you can actually select your icon pack, you can change font, आप यहाँ पे edge lighting choose कर सकते हैं. This phone also offers a lot of fingerprint scanner का animations, which is actually a very fun and quick features to use. इसके अलावा आपको मिलता है 4 years of OS updates along with 5 years of security patches. Powered by the Snapdragon 8 Plus Gen 1 system on chip, the usual tasks and the longer gaming sessions are handled by this smartphone एकदम मक्खन की तरह. You put some load on the OnePlus 11R and you will find that the thermal management is so good. Basically, I'm talking about the heating issues that many users face with most of the smartphones while playing heavy graphics game. लेकिन OnePlus 11R के साथ ऐसा कुछ नहीं है. रियल वर्ल्ड में जो इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी गुड एंड आई डू एंजॉय प्लेइंग Asphalt 9 ऑन दिस स्मार्टफोन. बैटरी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ इट्स सॉलिड स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको ये फोन 0 to 100% चार्ज करने में सिर्फ लगने वाले हैं अंडर 30 मिनट्स. यू हर्ड मी राइट, 30 मिनट्स के अंदर ही, इनफैक्ट थोड़े से कम टाइम में ये फोन पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है, थैंक्स टू द 100 वॉट फास्ट अडेप्टर जो इसके साथ आपको मिलता है, अनलाइक द अदर कंपेटिटर्स इन द मार्केट. फॉर इंस्टेंस Samsung Galaxy A54 5G, जिसके बॉक्स में आपको कोई चार्जर नहीं मिलता, बट विद OnePlus 11R you do get 100 watt brick, and that is actually a very fast charging technology that is offered by the company with OnePlus 11R. Now you get a circular camera island on OnePlus 11R, which houses 3 cameras in total. There is a 50 megapixel main camera, an 8 megapixel of ultra wide camera and a 2 megapixel of macro camera. अब सारे के सारे तो अच्छे नहीं हो सकते. I'll tell you 2-3 things that I like in the camera department in particular. जो मुझे पसंद आया वो है 50 मेगापिक्सल लाइक फुल रेजोल्यूशन में फोटो रिजल्ट्स. बहुत ही ज़्यादा शार्प, क्लियर विद नेचुरल लाइट्स आपको दिखाई देंगे. नेचुरल कलर, नॉट लाइट्स. उसी के अलावा मुझे इसका पोर्ट्रेट मोड काफ़ी पसंद आया. इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी गुड एज डिटेक्शन. ऑल्दो कलर्स थोड़े से सैचुरेट करता है, बट एक्चुअल में अगर आप पोर्ट्रेट मोड में खींचते हो तो वो डिटेक्ट अच्छे से करता है. इट डिफरेंशिएट्स द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड वेरी वेल. The third thing that I like in the camera department is the photos taken in low light conditions. नाइट फोटोग्राफी करना पसंद है तो ये फोन आपको खूब अच्छा लगने वाला है. जहाँ कैमराज इसके स्ट्रेंथ है वही इसका फ्लॉ भी है. वो कैसे? इसका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा तो काफ़ी ही धांसू है, लेकिन इसका अल्ट्रा वाइड और मैक्रो फोटो रिजल्ट्स आर वेरी डिसेंट. अगर मैं अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करूं तो आपको सारा फोकस और सारी डिटेलिंग एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम दिखाई देंगी. कॉर्नर्स पे से बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग हैं. एंड सिमिलरली मैक्रो सेंसर इज़ वेरी डिसेंट. इनफैक्ट इसका जो कंपेटिटर है Samsung Galaxy A54,
उसमें भी आपको एक मैक्रो सेंसर मिलता है एंड द फोटो रिजल्ट्स आर वेरी इंप्रेसिव। सो आई वुड से अल्ट्रा वाइड और मैक्रो के लिए ये काफ़ी ही डिसेंट कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मेन कैमरा से मतलब है तो आपको डेफिनेटली OnePlus 11R कंसीडर करना चाहिए। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टफोन स्पेसिफिकली फॉर कैमराज तो वहाँ पर थोड़े से इसको एवरेज मार्क्स मिलते हैं। अगर कैमराज के बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हो अलॉन्ग विद द वीडियो कैपेबिलिटीज ऑफ दिस स्मार्टफोन तो चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने कैमरा रिव्यू किया है फॉर OnePlus 11R। उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी सो दैट यू कैन फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो और उसके बाद आप जाकर देख सकते हैं द फुल डिटेल्ड कैमरा रिव्यू ऑफ OnePlus 11R। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस स्मार्टफोन। हेलो 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 ईयरपीस काम नहीं करता है। सो व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट OnePlus 11R कि इसका ईयरपीस का वॉल्यूम इज वेरी लो। बहुत बार आपको ऐसे करके बात करना पड़ता है एंड देयर इज नो वे टू एक्चुअली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ईयरपीस। अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पर आई हैव वन फीडबैक फॉर इट्स स्पीकर्स एज वेल। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं विच इज नॉट वेरी लाउड एज आई वुड वांट देम टू बी, स्पेशली इन अ फोन दैट इज एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग इन अ 40,000 रुपीज फोन, तो उसमें मेरे को एक अच्छा स्पीकर चाहिए। बट दिस इज डिसेंट, नॉट वेरी गुड, कुड हैव बीन बेटर आई वुड से। सो द बेस वेरिएंट ऑफ दिस स्मार्टफोन इज एन 8GB ऑफ रैम paired with 128GB of internal storage, which is available for ₹39,999। अब इतने प्राइस पर भी एक आध चीज भी मिसिंग होती है तो दिल को बहुत बुरा लगता है, जैसे कि मुझे लग रहा है, बिकॉज दिस स्मार्टफोन लैक्स IP रेटिंग। कोई भी IP रेटिंग नहीं मिला, नॉट इवन फॉर डस्ट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, अपने फोन को संभाल के इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे भाई। So, मैंने OnePlus 11R के साथ लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद आपको इसके स्ट्रेंथ्स एज वेल एज फ्लॉज बता दिए हैं। नाउ आई विल आंसर द क्वेश्चंस दैट आई पोस्ड इन द बिगनिंग। पहला सवाल था कि क्या आपके फोन की स्क्रीन फ्लिकर करती है एज सून एज यू अनलॉक द डिवाइस। So in my usage of 3 to 4 months with the device, I didn't face any such issue, to be very honest. But अगर आप फेस कर रहे हैं ऐसा कुछ तो इसका छोटा सा सॉल्यूशन ये है that you go to settings, you tap on display and brightness और यहाँ जाकर आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं and see if you can actually solve your problem। दूसरा सवाल था कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कभी कभी काम नहीं करता है। वो इशू मैंने फेस किया था इन द बिगनिंग, दैट वाज वेरी इजी टू सॉल्व। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू सेटिंग्स, वहाँ जाकर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का एनिमेशन चेंज करना है एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मेरे साथ हुआ था, मैंने उसको चेंज किया एंड आई डिडंट सी एनी लैग इन अनलॉकिंग द डिवाइस यूजिंग द फिंगरप्रिंट स्कैनर। तीसरा सवाल था कि क्या आप इसे एंड्रॉयड ऑटो के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जवाब है हाँ, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल व्हेनेवर यू यूज OnePlus 11R just to activate Android Auto in your car. So this was my long term review video of OnePlus 11R। कोई और सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए you really need to stay tuned to catch times, keep following our channel and also consider hitting the bell icon because जैसे ही हम किसी नए awesome tech वीडियो को लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। Thanks for watching today's video।